हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। बिजनेस कम्युनिकेशन में आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन बिजनेस वर्ल्ड। ठीक है, यानी कि क्या बेनिफिट है कम्युनिकेशन का अगर मैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ और कॉरपोरेशंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, किस तरीके से कम्युनिकेशन कॉरपोरेशंस में एज अ बैकबोन की तरह काम करता है और जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो भी गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने में हेल्प करता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन जॉर्ज आर टेरी ने दी थी। जॉर्ज ने उन्होंने बताया कि भी कम्युनिकेशन सर्व एज द इम्पॉर्टेंट और लुब्रिकेंट फोस्टरिंग फॉर स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस। ठीक है, जैसे कि होता है, जैसे कोई मशीन है, मशीन को जब ऑयलिंग कर दी जाती है तो वो बेटर तरीके से काम करने लगती है और उसकी जो एफिशिएंसी है, वर्किंग आउटपुट है, वो बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरीके से कम्युनिकेशन भी किसी भी वर्किंग और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, जिससे स्मूथ ऑपरेशंस ऑफ मैनेजमेंट फॉलो किए जाते हैं। ठीक है, मैनेजमेंट प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, वर्किंग एनवायरनमेंट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाती है if there is a proper or effective communication going on, ठीक है, between the persons in the organizations. So that is very important thing. So the importance of communication in the management has been widely recognized during the recent times. ठीक है, because in the day-to-day requirement, communication play very important role. Organizations, every functions, whether we are talking about the primary, whether we are talking about the secondary function or subsidiary functions, there is a proper communication required. If I am talking about the three levels of organization, top level, middle level, lower level, in at the every level, किसी भी level की बात करें, there must be a proper communication between the workers or the co-workers, so easily they can participate, coordinate, ठीक है, and motivate and build up their morale and increase the overall productivity of the organization. ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. Now we are moving on some points which are related to importance of communication. किस तरीके से कम्युनिकेशन अपनी इम्पोर्टेंस को और ज़्यादा इंक्रीज करता है, क्या क्या मेन इम्पोर्टेंस है कम्युनिकेशन के. सो फर्स्ट वन है फैसिलिटेट प्लानिंग. कम्युनिकेशन फैसिलिटेट प्लानिंग. Whenever you are going to take any decision, first of all you have to make a proper communication with the concerned persons, so easily you can find out the informations and make a proper decision and complete the fruitful planning. So there is a proper communication required. If the planning is related to the overall policy of the organization, so you have to make a proper communication with the workers, so easily you can understand about the requirements and the current aspect of the organizations. ठीक है, because policy is related to the workers will follow that policy. So first of all you have to confirm, you have to collect the data from the side of the workers about their viewpoint and their nature. So after that you can make a proper fruitful policy for that persons. Okay, second one है help in decision making. Whenever you take any decision, there is a proper communication, then you can make a proper decision. Okay, if there is a conflict going on between two persons, so first of all you have to make a proper communication. So easily with the communication you can easily identify about the actual problems. Okay, and easily you can understand their behaviors also. So after that you can make a fruitful decision. So it is very important if you are going to take any decisions for any person. So first of all you have to make a proper communication. Communication will understand, communication help to you to identify their personality and their attitude also. So and these factors are very important for decision making. ठीक है, थर्ड वन है facilitate coordination. Yes, communication facilitate coordination between the operations. If there is a group, a task is given to a group, so that task will perform by that group members easily if there is a proper coordination. Coordination leads to the persons to make the unity and
कंप्लीट द वर्क इन द कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव मैनर्स। ओके, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन, इफ देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन तो वर्कर्स के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहेगा। अगर वर्कर्स के बीच कम्युनिकेशन नहीं है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन भी नहीं होगा और वो मोटिवेट भी नहीं रहेंगे, ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ना ही अपनी परफॉर्मेंस के लिए। तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन। फोर्थ नंबर पे इम्प्रूव सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ठीक है, अगर मैं किसी भी दो पर्सन्स के रिलेशनशिप की बात करूँ, ठीक है, चाहे मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करूँ या फिर सिंपली तब बात करूँ, तो इफ देयर इज अ प्रॉपर कम्युनिकेशन तो उनके इंटरपर्सनल रिलेशन हमेशा हेल्दी रहेंगे। लेकिन अगर कम्युनिकेशन गैप है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट्स की कंडीशंस बनी रहेगी, जिससे ओवरऑल उनके रिलेशंस पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अपने सुपीरियर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दोनों के बीच टाइम टू टाइम कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैनेजर्स को अपने सुपीरियर को अंडरस्टैंड करना है बाय द कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के थ्रू ही आप किसी की पर्सनैलिटी को एनालाइज कर सकते हो, किसी के बिहेवियर को जज कर सकते हो। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो वहाँ पे आप बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर लोगे, जिससे इसका इफेक्ट आपके रिलेशंस पे पड़ेगा। ठीक है, सो इम्प्रूव सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, देयर मस्ट बी प्रॉपर कम्युनिकेशन। ठीक है, जैसे कि दो लोगों के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट चल भी रहा है, अगर प्रॉपर कम्युनिकेशन हो जाता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट इजीली रिजॉल्व हो सकता है। ठीक है, अगर कम्युनिकेशन गैप बन जाएंगे तो वो कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा डिस्प्यूट में चेंज हो जाएगा और कंडीशन बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के लिए और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन बैकबोन की तरह काम करता है। ठीक है, motivation and morale also done with the proper communication. If the manager want to motivate their workers, so first of all they have to make a proper communication. अगर communication नहीं है तो आप मोटिवेट भी नहीं कर पाओगे। जैसे लीडर में होता है, लीडर अपने फॉलोवर्स को लीड करता है। ठीक है, और साथ लीडर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि वो अपने जितने भी फॉलोवर्स हैं उनको मोटिवेट करके चले और उनके मोरल को हमारा हमेशा बूस्टअप रखे, बिल्डअप करके रखे। लेकिन ये सारी चीज़ें वो तभी कर पाएगा जब उसका प्रॉपर कम्युनिकेशन अपने फॉलोवर्स की। विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन यू कैन इजीली मोटिवेट एंड इंक्रीज द मोरल ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, बाय प्रोवाइडिंग गाइडेंस, कंसल्टेंस और एडवाइस और द प्रॉब्लम सॉल्यूशन टेक्निक्स। तो इस तरीके से आप उनको और ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं और ज़्यादा उनके मोरल को बिल्डअप करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल कोट करता हूँ मार्केटिंग में, और इट इज़ ऑब्वियस, और हम जानते हैं कि मार्केटिंग में कम्युनिकेशन ट्रिक्स कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। जो सेल्स पर्सन्स होते हैं वो कम्युनिकेशंस के थ्रू ही कस्टमर को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके परचेजिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंस थे कम्युनिकेशन के, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन इन द बिजनेस वर्ल्ड। तो ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद एक टॉपिक और यहाँ पे कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड है, बिजनेस कम्युनिकेशन, जहाँ फैक्टर्स अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ओरल प्रेजेंटेशन की। ओरल प्रेजेंटेशन क्या है? कम्युनिकेशन है बिटवीन द पर्सन टू देयर टारगेट ऑडियंस। ठीक है, अब फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन या ओरल कम्युनिकेशन? ओरल कम्युनिकेशन इज द कम्युनिकेशन विद द यूज ऑफ वर्ड्स ऑफ माउथ। वर्ड्स ऑफ माउथ को यूज करके आप कम्युनिकेशन को प्रोसीड करते हो। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ओरल प्रेजेंटेशन में फर्स्ट वन है बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ अपीयरेंस की। आपका अपीयरेंस कैसा है, आपका पोस्चर, जब आप कम्युनिकेट करते हो तो किस तरीके से आप कम्युनिकेट करते हो, आपका वे ऑफ वॉकिंग क्या है, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस। जब भी हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि स्पीकर के फेशियल एक्सप्रेशंस क्या हैं। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। यू हैव टू मेक अ फॉर्मल कम्युनिकेशन और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस अप्रोप्रिएट होने चाहिए ताकि आपका कम्युनिकेशन भी फॉर्मली प्रोसीड रहे। ठीक है, और जो रिसीवर्स है वो अटेंटिवली आपको रिसीव करें। यूज ऑफ वॉइस, आपकी वॉइस भी अफेक्ट करती है आपकी कम्युनिकेशन को। आपकी वॉल्यूम कितनी है, आपका टोन क्या है, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, आपकी स्पीड कितनी है। ठीक है, और आपकी पिच कितनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ पीपल को अपने वर्ड्स ऑफ माउथ के थ्रू ही डील कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो माइक के थ्रू यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो फैक्ट।
नेक्स्ट है ऑडियंस एनालिसिस। तो ऑडियंस को भी एनालिसिस किया जाता है कम्युनिकेशंस या किसी भी प्रेजेंटेशन की बात करूँ उस टाइम, ठीक है। ऑडियंस को एनालाइज करने के बाद आप प्रॉपर प्लानिंग करते हो अकॉर्डिंग टू देयर नेचर एंड देयर अंडरस्टैंडिंग। यूज ऑफ वर्ड भी आप उसी तरीके से यूज करोगे, और आंसरिंग क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनका किस तरीके से रिप्लाई देना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड यू हैव टू लर्न कि भाई अगर क्वेश्चन आंसर राउंड में अगर बाद में कोई क्वेश्चंस पुटअप किया जा रहा है एंड यू डोंट नो अबाउट द आंसर एंड एक्यूरेट आंसर्स, सो हाउ यू कैन फेस दैट कंडीशन, तो किस तरीके से आप उस कंडीशन को फेस करोगे, दैट इज, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमारा यही था, इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन में, इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, और ये कुछ पॉइंट्स जो कि रिलेटेड थे कम्युनिकेशंस से। सो ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो वो दोबारा से डिस्कशन कर सकते हैं। ये टॉपिक हमारा फिनिश हुआ, ऑलमोस्ट हमने कई टॉपिक कवर कर लिए हैं। अब किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप उसको क्लियर करें। सो लेट्स फिनिश दिस टॉपिक टुडे। इन सभी टॉपिक्स को आप रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन लीजिए इनके, कोई नोट्स नहीं है तो नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और पढ़ते रहिए। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।